Hello students, I hope you are all well. हाँ जी students, we have completed almost all the chapters for our half yearly course till now. Only chapter number 8 is remaining, which we are starting from today onwards. Okay. In chapter number 8, you will be only having exercise 1 and exercise 2 as the part of your CBSE syllabus. CBSE syllabus, half yearly syllabus this year. Exercise 3 will not be part of your syllabus for the examination purpose. If you want to try exercise 3, that is up to you. But for examination purposes, only exercise 1 and 2, 8.1 and 8.2 will be important. Okay. So we'll start with this chapter now. Chapter is direct and inverse proportion. This is extension of the chapter that you have learned already. You have done already in your previous class. That was ratio and proportions. Okay. In 7th class, you had a chapter called ratios and proportions. This direct and inverse variation is just an extension of that chapter. So first of all, let me give some examples to you so that you can relate with this chapter. First of all, let me take an example from book itself. Suppose there are certain numbers of students going to a picnic. Okay, and the number of students who want to go, who are actually going to the picnic, is not reported earlier. Okay, so the organizer of this picnic event is not aware of the number of students that are going to be go to the picnic. Okay, so as you might know, before going to the picnic and organizing in the bus, the organizer provide you with some refreshments and some water bottles. Okay, so you know the water bottle that one glass water bottle, a small water bottle that you receive, Bisleri small water bottle that you can see in lots of wedding functions and ceremonies. That water bottle the organizer is providing. Okay, so organizer by himself supposes that 50 students are going to be come to the picnic. Okay, so and every student should get 2 water bottles. Okay, so now let us see the scenario here. If you have 50 students, then it by by giving 2 water bottles to each student, you will require 100 bottles, or you can say 100 bottles are to be distributed among 50 students. When the number of students is increased, suppose instead of 50 there are 60 students. When the number of students is increased, the number of water bottles should also be increased. Okay, and if the number of students is decreased, there are only 30 students, then the number of required water bottle is also decreased. Okay, let us take similar type of example. I hope you can relate with this example. If you were following the newspaper, you will actually relate with this example. When there is a rush in the society, rush in the sense of when there is high traffic in your environment, when there is high traffic on the roads, the degree of pollution increase. Okay, means more traffic means more pollution. More pollution and less traffic, like we observed in during the lockdown period, there were certain cases of clearing of the pollution level from the air, from water and from soil. Okay, means less traffic. Means less pollution. During this 3-month period of lockdown,
what we observed throughout the country, throughout the world was कि जैसे कि there were some examples of viewing of Himalaya mountain range from some certain villages of Punjab. Okay, if you followed the news, you might have known that कि पंजाब के कुछ गांवों से आपको हिमालय पर्वत रेंजेस दिखाई दे रहे थे. There was also an instances of डॉल्फिन्स कमिंग टू द शोर्स. डॉल्फिन्स जो है, क्योंकि शोर्स पे, शोर क्या होता है, किनारा होता है समुद्र का या फिर आपके पानी का, तो किनारे के आसपास आमतौर पे कचरा ज़्यादा होता है जब लोग बाग मूवमेंट कर रहे होते हैं. क्योंकि इस 3 महीने के पीरियड में लोग बाग आए नहीं थे, कचरा नहीं फैलाया था, पॉल्यूशन कम था, तो नदी के जो किनारे हैं, समुद्र के जो किनारे हैं, दे वर रिलेटिवली पॉल्यूशन लेस. तो उसकी वजह से जो फिशेस थी दे वर वेलकमिंग, वो क्या है कि रेडीली शोर तक आ रही थी. ओके, पॉल्यूशन की कमी की वजह से काफ़ी सारे जो बर्ड्स हैं, जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, उनकी भी तादाद बढ़ गई थी. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग दिस 3 मंथ लॉकडाउन, फैक्ट्रीज बंद हो गई थी तो पॉल्यूशन कम हो गया था, ट्रैफिक बंद हो गया था तो पॉल्यूशन कम हो गया था, लोग बाग घर पे ही रह रहे थे, फास्ट फूड कंज्यूम नहीं कर रहे थे, तो पॉल्यूशन कम हो गया था. ठीक है. तो लेस मोबाइल द पीपल आर, देयर इज लेस पॉल्यूशन. जितना ज़्यादा कम घूमे कूदे डोले लोग, उतना ही कम ज़्यादा पॉल्यूशन होता गया. तो जितना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होता जाता है, जितना ज़्यादा ट्रैफिक कम होता जाता है उतना ज़्यादा पॉल्यूशन कम होता जाता है. ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. दिस टाइम लेट मी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ पाइप. आपके पास बड़े डायमीटर का पाइप है. इफ़ यू हैव अ पाइप विद लार्जर डायमीटर, द फ्लो ऑफ वाटर विल बी हाई. आपके पास आपकी जो बाल्टी है उतना ही जल्दी भर जाएगी. एंड इफ यू हैव अ स्मॉलर डायमीटर ऑफ पाइप, then your bucket will take more time to fill the, your pipe will take more time to fill the bucket. ये कुछ खास वैलिड नहीं है, ये हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन में वैलिड होगा. बट द एग्जाम्पल्स गिवन टिल नाउ इंडिकेट दैट आपके पास जैसे जैसे एक चीज़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे दूसरी चीज़ भी बढ़ती जा रही है. ठीक है. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हाँ जी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आप जैसे जैसे पंखे का रेगुलेटर बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे पंखे की स्पीड बढ़ती जाती है. जब when your regulator of the fan points at 1, the fan is at its slowest. As you increase the value on the regulator, जैसे जैसे 1, 2, 3, 4 तक पहुँचते हैं, the speed of the fan is increased according to that also. Okay, so based on these examples, we are going to today study about direct proportion. डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? जैसे जैसे आप एक चीज़ का वैल्यू बढ़ा रहे हो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ रही है. जैसे जैसे आप एक चीज़ का वैल्यू घटा रहे हो दूसरे की भी वैल्यू घट रही है. ठीक है. इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं. क्वेश्चन करते हैं वैसे वैसे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता जाएगा. विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 8.1. ठीक है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि सपोज यू हैव 2 एलिमेंट्स x एंड y. ओके, सो x और y का जो रेशियो होगा, x1 और y1 का जो रेशियो होगा, वही रेशियो x2 और y2 का होगा. यहाँ पे x1 जितना x2 से छोटा है, या फिर ऐसे कहें x2 x1 से जिस रेशियो में बड़ा है उसी रेशियो में y2 भी बड़ा होगा y1 से. ठीक है. कैसे समझेंगे, क्या करेंगे, जरा ध्यान दो. सपोज यू हैव गॉन टू द मार्केट और आप जो है एक मैथ्स की किताब खरीद के लेके आए हो, तो आपके 150 रुपीज़ लगते हैं. अगर आप 2 मैथ्स की किताब खरीद के लाओगे तो कितने रुपए लगेंगे? इंटू 2. 3 मैथ्स की किताबें खरीद के लाओगे तो कितने लगेंगे? इंटू 3. 4 मैथ्स की किताबें खरीद के लाओगे तो इंटू 4. तो इस तरह से एज यू इंक्रीज द नंबर ऑफ बुक्स परचेज, द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर गोइंग टू बी पेइंग इज गोइंग टू इंक्रीज एज वेल. जैसे जैसे आप नंबर ऑफ किताबें, नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे उसका कितना पैसा पे करेंगे वो भी इंक्रीज होता जाएगा. दिस इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन.
ओके इसके बारे में कोई थ्योरी वगैरह लिखने का जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मीन्स एज यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन थिंग, द रिलेटिव वैल्यू ऑफ अदर थिंग ऑल्सो इंक्रीजेस। ओके लिख लेते हैं, अब आप कह ही रहे हो तो लिख लेते हैं। एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज as we increase the value of one thing, the relative value of second object also increases. The relative value of second object is also increases, and this is known as direct proportion. This is known as direct proportions. This is known as direct proportions. Okay. So like I told you earlier, we will start with some questions. We'll start with question number 5, because before question number 5, these are MCQ types of question. And as we move on with the questions, I will hope that you will be able to do question number 1 to 4 by yourself. Okay. And if you encounter any problem, once again, please ask. Question number 5 is a machine in a soft drink factory what are soft drink? Pepsi, Coca-Cola, Mountain Dew, these are soft drinks. A machine in a soft drink factory fills 700 bottles in 5 hours. How many bottles will it fill in 8 hours? देखिए आपके पास ज्यादातर क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर में दीज आर वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस. ओके सो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए द बेस्ट प्रैक्टिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नोट डाउन ऑल द वैल्यूज दैट आर गिवन टू अस विद एप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स. एप्रोप्रिएट इंडिकेटर्स मतलब मैं पहले लिख लूंगा कि क्या क्या कंडीशंस दे रखी है और कितनी कितनी कंडीशन दे रखी है. एक बार सॉल्यूशन देखिए फिर आपको पता चलेगा कि किस बारे में बात कर रहे हैं. सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमसे क्या कहा गया है. फर्स्ट केस इज 700 बोटल्स फिल करी जा रही हैं 5 आवर्स में. सो केस वन इज नंबर ऑफ बोटल फिल्स number of bottles filled is 700 and time taken is 5 hours. Okay, now there is case 2. Case 2 is, okay, you can also write as condition 1 and condition 2. okay, और अगर आप केस करके नहीं लिखना चाहते तो नहीं लिखिए. ठीक है. Next is question is how many bottles will be filled in 8 hours. So in next question time taken is 8 hours. Time taken is 8 hours and we don't know how much bottles of this soft drink can be filled in 8 hours. Okay, so we will let number of bottles
filled in 8 hours, filled in 8 hours, number of bottles filled in 8 hours. Yes, so let the number of bottle filled in 8 hours, this is in 8 hours, 8 घंटे में कितनी बोतल फिल भी x। क्या है कि हमको बता रखा है दैट नंबर ऑफ बॉटल फिल्ड इन 5 आवर्स इज 700। 8 घंटे में कितनी बोतल फिल करेंगी ये हमको नहीं बता रखा, तो हम क्या करेंगे, उसको x मान लेंगे, ठीक है। और अब इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वैल्यू निकालेंगे। डायरेक्ट प्रोपोर्शन कैसे, सबसे पहले तो जो पता है वो लिख लेंगे। केस 1 के बारे में लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसे कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूनिटरी मेथड या फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड लगा रहे हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड कैसे लगा रहे हैं, नंबर ऑफ बोतल फिल्ड, हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ, ये लिखना नहीं है, मैं बस बताने के लिए बता रहा हूँ। हम लोग रेशियो निकालने वाले किसका, नंबर ऑफ बॉटल्स फिल्ड अपॉन टाइम टेकन। इसका रेशियो निकालने वाले, ठीक है। और ये रेशियो की वैल्यू हम कहेंगे कि फर्स्ट केस के लिए और सेकंड केस के लिए दोनों की दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। मतलब कि नंबर ऑफ बॉटल फिल्ड्स अपॉन टाइम टेकन फर्स्ट केस के लिए निकाला जाए या फिर नंबर ऑफ बॉटल फिल्ड्स अपॉन टाइम टेकन सेकंड केस के लिए निकाला जाए, इन बोथ द केसेस द आंसर शुड बी इक्वल। ये करने वाले हैं। सो देखिए फर्स्ट केस के लिए, नाउ फर्स्ट केस के लिए नंबर ऑफ बॉटल फिल्ड्स अपॉन टाइम टेकन इज 700 अपॉन 5। सेकेंड केस के लिए नंबर ऑफ बॉटल्स इज x एंड टाइम टेकन इज 8। और इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई की मदद से वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x। सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज 700 into 8 is equals to 5 into x, or you can write it as 5 into x is equals to 700 into 8. So this will be 5 into x is equals to 7 8s are 56. Value of x will be 5600 upon 5, that is 5 1s are 5, 5 1s are 5, 5 2s are 10 and 0. तो इस तरह से बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ रेशियो वी आर गोइंग टू डिटरमाइन, वी हैव डिटरमाइन द नंबर ऑफ बॉटल्स। हमने यहाँ पे रेशियो का मदद लेके, कंसेप्ट जो रेशियो का है उसका मदद लेके बॉटल्स का वैल्यूज निकाल लिया, नंबर ऑफ बॉटल्स निकाल लिया, कितना नंबर ऑफ बॉटल ऑक्यूपाई। ओके, लेट अस ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस एंड सी इफ यू कैन अंडरस्टैंड। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6 is, a building 15 meter high cast a shadow 1 meter long. So I am just starting with the solution. मैं इस बार क्वेश्चन नहीं लिख रहा, सॉल्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। A building, see first of all we are given the height of the building. Condition 1 is height of the building when the height of the building is 15 meter, length of the shadow is length of the shadow is 1.8 मीटर। एक 15 मीटर ऊंची बिल्डिंग है तो उसकी जो शेडो है वो है 1.8 मीटर, यहां तक बन रही है उसकी शेडो। ओके, एंड देन कंडीशन 2 की बात करेंगे। हमेशा ऐसा होगा कि एक कंडीशन आपको फुली दे रखी होगी, दूसरी कंडीशन में एक वैल्यू मिसिंग होगी। What will be the height of the pole whose shadow at the time is 60 सेंटीमीटर? ओके, हमारे पास शेडो, लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ पोल
पोल इज 60 सेंटीमीटर, इसको मैं कन्वर्ट करके लिख रहा हूँ 0.6 मीटर्स। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बाकी सारी की सारी वैल्यूज मीटर में थी। तो हमारे पास एक पोल है जिसका शेडो है 0.6 मीटर, वी डोंट नो इट्स हाइट, सो वी लेट हाइट ऑफ पोल बी x मीटर्स। ओके, अगर x मीटर हाइट का पोल है तो उसका शेडो का लेंथ कितना होगा? 0.6 मीटर। सेम चीज जो पिछली बार की थी वही करेंगे। क्या करेंगे? रेशियोस निकालेंगे। फर्स्ट कंडीशन में जो रेशियो का वैल्यू है और जो सेकंड कंडीशन में रेशियो का वैल्यू है वो बराबर होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन में रेशियो का वैल्यू इज हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपॉन लेंथ ऑफ द शेडो। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 15 अपॉन लेंथ ऑफ द शेडो इज 1.8। सेकेंड कंडीशन में जो रेशियो बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट ऑफ द बिल्डिंग x एंड लेंथ ऑफ द शेडो विल बी 0.6। नाउ व्हाट रिमेन्स इज टू फाइंड आउट इट्स सॉल्यूशन, टू सिंप्लीफाई इट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. So we will do cross multiplication once again. So this will be 1.8 into x equals to 15 into 0.6. Okay, so value of x can be determined as 15 into 0.6 upon 1.8. सबसे पहले तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा. Okay, so this will be x is equals to 15 into 6 upon 80. 6 1 is 6, 6 3 is 18, and 3 1 is 3, 3 5 is 50. So it is 5 meter. तो क्या है आपके पास यहाँ पे? लेंथ ऑफ द पोल इज 5 मीटर. ठीक है, कैसे है 5 मीटर? जब उस पोल की लेंथ 5 मीटर होगा जिसका शेडो कितना बन रहा है? 60 सेंटीमीटर और 0.6 मीटर्स. ओके, इसी तरह से करने हैं हमको सारे के सारे क्वेश्चंस. हमको क्या करना है? सबसे पहले वी हैव टू मेंशन ऑल द थिंग्स दैट वी नो एंड देन वी हैव टू फाइंड द रेशियोज अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. So let us see question number 7 in this case. Okay, question number 7 is the weight of 15 bags of rice is 460 kg. Condition 1 becomes weight, there are number of bags is 15 and weight of 15 bags is 460 kg. Okay, what I am showing you now is one of the methods with which we can do the questions of direct proportion. ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक मेथड है जिससे आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस कर सकते हो. इन केस आपने कोई और मेथड सीख लिया अपने पेरेंट्स से, अपने जानने वालों से, तो आप उस मेथड से भी कर सकते हो. वापस से कह रहा हूँ बेटा, आप में से जो लोग मेरे से पढ़े हुए पहले भी, उनको पता भी होगा 7th क्लास में कि मेथड आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो. इट वुडंट मैटर टू मी एट ऑल, आपका मेथड करेक्ट होना चाहिए. ठीक है, आपको अगर डाउट है आपका मेथड करेक्ट है कि नहीं है तो मेरे को आपका सॉल्यूशन का फोटो भेज दीजिए, मैं बता दूंगा. बट आप लोग इन क्वेश्चंस को ट्राई करने के लिए कोई सा भी वैलिड मेथड यूज कर सकते हो, मेरे को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है. ओके, एंड आप क्वेश्चंस कर रहे हैं. नाउ कंडीशन 2, दिस क्वेश्चन 7th क्वेश्चन हैज 2 पार्ट्स A and B. A part gives you another condition. A पार्ट की कंडीशन अलग है, B पार्ट की कंडीशन अलग है. पहले A पार्ट करेंगे और उसी की तरह से B पार्ट आप लोग खुद ट्राई करना घर में. कंडीशन 2 विल बी द वेट ऑफ 3 bags of rice. सो वी हैव नंबर ऑफ बैग्स हमको दे रखा है. चलो इसका कंडीशन 2 भी मैं ही बता दूंगा. नंबर ऑफ बैग्स हमको दे रखा है 3, वेट हमको नहीं पता, तो लेट करेंगे. लेट वेट ऑफ 3 bags इज इक्वल्स टू x. ओके, वंस अगेन रेशियो लगाएंगे. रेशियो कैसे?
15 upon 460, number of bags upon weight should be equal to number of bags upon weight. Once again क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे. That means 15 into x should be equal to 3 into 460 and x should be equal to 3 into 460 upon 15. 3 5s are 15 and 5 9s are 45, 5 2s are 10, 92 kg. Okay, so 3 बैग्स का वेट कितना हुआ 92 kg. ध्यान रखना न्यूमरेटर वाली वैल्यू वही रहेगी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू वही रहेगी. न्यूमरेटर में मैं अगर बैग्स रख रहा हूं तो इक्वल टू के दोनों तरफ न्यूमरेटर में नंबर ऑफ बैग्स आएगा. डिनोमिनेटर में मैं यहाँ पे वेट ऑफ द बैग्स रख रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में LHS और RHS में दोनों जगह वेट ऑफ द बैग्स ही आएगा. इसी की तरह इसका सेकेंड पार्ट भी करके देखते हैं अपन. बी पार्ट तो चलो कह देते हैं कि ये कंडीशन 3 आ गई. कंडीशन कौन सी आ गई 3 आ गई. तो यहां पे क्या दे रखा है, हाउ मेनी बैग्स विल वेट 644 kg. नंबर ऑफ बैग्स आर नॉट नोन, सो लेट द नंबर ऑफ बैग्स be y. Weight of these bags इनका वेट कितना मान लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं. लेट वेट ऑफ दीज बैग्स, नहीं लेट क्यों, नंबर ऑफ बैग्स लेट किया. वेट ऑफ दीज बैग्स इज गिवन टू अस एज 644 kg. सो वंस अगेन वी विल अप्लाई द सेम रेशियो क्या था 15 upon 460, नंबर ऑफ बैग्स अपॉन वेट ऑफ बैग्स इज इक्वल्स टू, हाँ जी यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास y अपॉन 644 आएगा या 644 अपॉन y आएगा, y अपॉन 644. क्यों, नंबर ऑफ बैग्स न्यूमरेटर में, वेट ऑफ बैग्स डिनोमिनेटर. सिंप्लीफाई करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 15 इंटू 644 इज इक्वल्स टू 460 into y, and we'll simplify it to find out the value of y. Y will be equal to 15 into 644 upon 460. ओके, सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे पहले तो 5 से, 5 3s are 15, 5 9s are 45 and 5 2s are 10. 92 आ गया. ये 3 से तो नहीं जाएगा, सो 2 से जाएगा. 92 4 से भी चला जाएगा. 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 1s are 4, 5 6, 4 6s are 24, 4 1s are 4, 161. 23 की टेबल में 161, 23 5s are 106, 23 7s are, करके देखते हैं बेटा. 23 into 7, 7 3s are 21, 7 2s are 14, 15 16, 161. तो 7 times is equals to 3 into 7. So value of y is 21 bags. So इसके फर्स्ट पार्ट में हमको वेट ऑफ 3 बैग्स निकालना था. इसके सेकेंड पार्ट में हमको ये निकालना था कि हाउ मेनी बैग्स विल वे 644 kg. तो वो हमने डिटरमाइन किया है 21 बैग्स. ओके, इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोग ट्राई कीजिए. ओके, ट्राई क्वेश्चन नंबर 8 और 9. मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रेशियो निकालना है आपको डॉलर्स का रुपीज से, दैट इज डॉलर्स तो न्यूमरेटर में आएगा एंड रुपीज विल बी इन डिनोमिनेटर. और दूसरे केस में आप एक्स डॉलर्स तो एक्स लेट कर लेंगे एंड रुपीज यू विल लेट एज 3600. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट विल बी द नंबर ऑफ डॉलर्स विच विल अमाउंट टू रुपीज 3600. एंड क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेंगे, देयर आर 10 टीचर्स टू एग्जामिन 1200 स्टूडेंट्स.
So first ratio you will take as number of teachers upon number of students, and second ratio that you will take is number of teachers again that you will let as x, and number of students again that you are given as 4200. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का आंसर निकालेंगे, एंड दैट विल बी योर नंबर ऑफ टीचर्स. ओके, नाउ लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 10. एक क्वेश्चन नंबर 10 और कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 and 12 we will discuss in the next video. So question number 10 is, suppose 3 kg of sugar contain 9 into 10 की power 6 crystals. Okay, so we have weight of condition 1, weight of sugar is 3 kg, and number of crystals contained, number of crystals crystals contained is 9 into 10 to the power 6 crystals. Okay, so for this A part, in A part we are given the weight of the sugar. Weight of the sugar is 5 kg, but we don't know the number of crystals contained. So let number of crystals in 5 kg of sugar be x. Once again we will apply the ratios. Ratios is weight upon number of crystals. This is 10 to the power 6, and then 5 upon weight upon number of crystals. We will simplify this. 3 into x will be equal to 5 into 9 into 10 to the power 6. X will be equal to 5 into 9 into 10 to the power 6 upon 3. This is 6. So this is 3 3s are 9. 3 5s are 15. Value of x will be 15 into 10 to the power 6. So for 5 kg of sugar, the amount of crystals will be 15 into 10 to the power 6 crystals. This number of crystals will be present in 5 kg amount of sugar. Now let us do its B part. B part is 3.5 kg of sugar. Okay, I will leave B part for you. What you have to do in B part, you have to 3 upon 9 into 10 to the power 6 is equals to y upon 3.5 upon y. Let me do it for you as well. Cross multiply, you will get 3 into y is equals to 3.5 into 9 into 10 to the power 6. You will simplify it and get the value of y. You can write down the theory by yourself. Okay, I've already taken a lot of time, so I'm not going to extend the duration of this video. 3.5 into 3, 5 3 is 15, 3 3 is 9, 1 0 into 10 to the power 6 crystals. Okay, so this is your answer. We have not touched 10 to the power 6, so keep it that way. Okay, so this was exercise 8.1. Question number 11 and 2 we will be doing in the next video, and along with it we will start with the inverse proportions. Thank you for your time. Have a nice day.